Good morning, students. Today we are going to do our first chapter of history, that is what, where, how, and when. See, actually, in this chapter, we are going to read about what has happened in the past, how it has happened, when it has happened. So, the first point is finding out what happened. हुआ क्या था? Actually, nowadays we are having many source of information, like we are having radios, we are having televisions to watch, and we are having newspapers to read. But in the previous time, in the ancient time, we do not have such things. So what can we know about the past? Now the question arises, what can we know about our past? So there are so many things, like what people ate at that time, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived, and what kind of hunting they did at that time. Were they farmers? Were they hadrids? And what kind of rulers we are having in our past time. So many things, so many questions arises in our mind, that how people lived at that time. Where did people live? So actually, in the previous time, people used to live at the banks of the rivers, because food was easily available there, animals were easily available there, people can hunt the animals there easily. So they used to live at the banks of the river, and they were called skilled gatherers. What do you mean by skilled gatherers? It means the people were having the skill to gather the food, means they were able to gather the things to eat, and they were well aware of which kind of fruit they can eat, and which kind of animals they can hunt. Now you will see a map. In this map, as it is written here, now find the Suleiman and Kirtar hills to the northwest. Northwest means in the side of Gujarat. Not exactly in Gujarat, I am just telling you about the site that it is in the west. Suleiman and Kirtar hills are located here. Look at in the map. Actually, 8,000 years ago, people started growing wheat and barley there in Suleiman and Kirtar hills, and started rearing animals there, like sheep, like goat, like cattle. Means उन्होंने वहाँ पे खेती करना शुरू किया, और उन्होंने वहाँ पे रहना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया. Now agriculture developed at that time. खेती भी वहाँ पर develop होने लगी. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. जहाँ पे सबसे पहले चावल उगा, वो जगह विंध्यास के नॉर्थ में पाई गई थी. अब ये आपको बोल रहा है इंडस रिवर को ढूंढने के लिए और उसकी ट्रिब्यूटरीज को ढूंढने के लिए. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of this river. लगभग 4700 साल पहले इंडस नदी के किनारों पे शहर बसने शुरू हो गए, और लगभग 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे पे शहर बसने शुरू हुए. एक्चुअली मैंने आपको बताया लोग नदियों के किनारों पे क्यों रहते थे, क्योंकि वहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल होता था, खाना इजीली अवेलेबल होता था. In the ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magda. गंगा नॉर्थ से बहना शुरू करती है उत्तराखंड से, और बहती हुई वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है, और वहीं पे उनका डेल्टा है. बांग्लादेश में बेसिकली डेल्टा है, वेस्ट बंगाल से होती हुई वो जाती हैं. तो गंगा जी के नॉर्थ में मगधा है, लगभग बिहार में. मगध के राजा जो थे वो बहुत पावरफुल थे, और उन्होंने अपना एक बड़ा किंगडम सेटअप किया था. बड़ा किंगडम सेटअप किया था मतलब कि
वो जहाँ पे राजा होते थे वो धीरे धीरे अपने आसपास के एरिया को अपने अपने राज्य में मिलाते जाते थे और इस तरह से वो राज्य साम्राज्य हो जाता था। और मगध के राजाओं ने अपना बहुत बड़ा किंगडम जो था वो सेटअप कर रखा था। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और वो ट्रैवल क्यों करते थे? वो इसलिए ट्रैवल करते थे अपने लाइवलीहुड और फूड के सर्च में। जब एक जगह पे पानी ख़त्म हो गया, मान लीजिए बाढ़ आ गई, मान लीजिए नदियाँ सूख गई, तो वो एक जगह दूसरी जगह जाने लगते थे पानी की तलाश में। जब एक जगह के सारे जानवरों ने हंट कर लिए तो दूसरी जगह के जानवरों को हंट करने के लिए चले जाते थे। तो इस तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। बहुत सारी मुश्किलें भी आती थी, नदियों को पार करना, पर्वतों को पार करना, बट वो पीपल किसी भी तरह से उसे पार कर लेते थे। बट नेवर इम्पॉसिबल, पर उनके लिए कभी इम्पॉसिबल नहीं होता था, जाना ही होता था खाने की तलाश में, तो वो चले जाते थे। इसीलिए उस टाइम के लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज conquering other lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village. आर्मी वाले लोग राजाओं के लिए मार्च करते थे दूसरी जगह, सैनिक दूसरे जगह पे आक्रमण करने के लिए जाया करते थे। बिजनेसमैन जो होते थे वो बिजनेस करने के लिए जाया करते थे, सामान ले जाना दूसरी जगह पे, वहाँ बेचना, इस तरह से जाया करते थे। तीसरा, रिलीजियस पीपल, साधु, संत, टीचर्स, वो एक जगह से दूसरी जगह शिक्षा देने जाया करते थे। तो इस तरह से अलग अलग कारणों से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और कई लोग सिर्फ घूमने के लिए शायद जाया करते थे। वांटेड टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, वो नई जगहों को डिस्कवर करने जाते थे कि क्या है, क्या जीवन है, क्या वहाँ पे खाना है, या वहाँ पे क्या कुछ है, जानने के लिए जाया करते थे। All this led to the sharing of ideas between people. So these kind of ideas people having that the people in the ancient time move for these reasons. Now the question arises, why do people travel nowadays? आज के टाइम में लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? The reason behind, simple reason, the reason of moving from one place to another place of the ancient people and of today's people are same. They move in search of livelihood and food. See, people face many difficulties while migration. If a person is going from one place to another, they move in search of food and livelihood. It's not easy for them to move, to leave behind their houses back and to move forward somewhere else. It's not easy for anyone, but people move in search of jobs, in search of food, means livelihood only. Now the point is names of the land. हमारे भारत को भारत के नाम से, इंडिया के नाम से जाना जाता है, पर ऐसा इंडिया और भारत के नाम से क्यों जाना जाता है? एक्चुअली ये द वर्ड इंडिया, जो इंडिया वर्ड है वो इंडस नदी से निकला है और कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, तो संस्कृत में इसको सिंधु कहते हैं। एक्चुअली ईरानी और ग्रीक्स जब भारत आए तो वो भारत आए लगभग 2500 साल पहले, और वो आए इंडस नदी के रास्ते से भारत में। तो इंडस नदी के पार रहने वाले लोगों को वो हिंदोज और इंडोज के नाम से जानते थे, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, और इसीलिए इसको इंडिया बुलाते थे। और भारत का जो नाम है यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उन्हें भारत नाम से जाना जाता था उन लोगों को, एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, और इनका जिक्र ऋग्वेदा में भी मिलता है। तो इस तरह से भारत का नाम भारत और इंडिया पड़ा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब पास्ट के बारे में कैसे पता कर सकते हैं? तो पास्ट के बारे में पता करने का सबसे बेटर और बेस्ट सोर्स है कि उस टाइम की लिखी हुई किताबों को पढ़ा जाए। किताबें उस टाइम, अब पेज तो होते नहीं थे तो लोग लिखते कैसे थे? One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscript, but they are written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. ये जो किताबें होती थी हाथ से लिखी जाती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट में मैन्यू का मतलब हाथ है, स्क्रिप्ट मीन्स रिटन समथिंग। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो पाम लीव्स पे लिखी जाती थी। लोग अपनी अचीवमेंट्स को लिखवाते थे, राजा अपने बारे में लिखवाते थे, तो इसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। अगर वो पढ़ी जाए तो हम उस टाइम के बारे में और पता कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।